Jesus, यीशु की दुनिया में आपका स्वागत है to hear the voice of God. प्रभु की आवाज सुनने के लिए। When Jesus' world is there, जब यीशु की दुनिया होती है there is always safety. हमेशा वहाँ पे सुरक्षा आती है। Learn about Jacob's 12 sons. तो याकूब के पुत्रों के बारे में सीखने के लिए, And I believe that और मैं विश्वास करता हूँ God is transforming each one's life. प्रभु हर एक की जिंदगी को बदल रहे हैं। And we learned about Reuben. हमने रूबेन के बारे में सीखा, We learned about his instability. हमने देखा कि वो कैसे अस्थिर था। So we should not be unstable in our तो spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में हमें स्थिर होना जरूरी है। We learned Simeon and Levi, तो शिमोन और लेवी के बारे में भी full सीखा of मैं, anger. पूरे कोप से भरे So हुए। many times with our anger we mess up our lives. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे गुस्से के कारण हमारे जीवन को हम जिंदगी खराब करते हैं। We saw how their lives have been messed up हमने देखा कि कैसे उनकी जिंदगी में वो सब because mess up हो गया। of the anger they were scattered, उनके गुस्से के कारण वो बिखर गए। and also we saw how God lifts Levite because they turned to God. और फिर हमने ये भी देखा कि प्रभु लेवियों को कैसे उठाता है क्योंकि वो प्रभु की ओर बढ़े। Amen. Amen. Today we are going to know about the fourth son of Jacob. आज हम याकूब के चौथे बेटे के बारे में I सीखेंगे। promised you मैं वादा करता हूँ is going to be not the yesterday's transformation. रहेगी, लेकिन आज एक परिवर्तन। God is going to take you so deeper and is going to lift you up through his life. और प्रभु तुम्हें इतने गहराई में ले जाएंगे और आज तुम्हें जरूर उठाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So for the study, आज के शिक्षण now के लिए remember when Jacob was blessing or prophesying over his children, he was blind. देखो, जब याकूब अपने बच्चों के ऊपर आशीष दे रहा था या आशीर्वाद दे रहा था, उस समय वो अंधा था। Now he couldn't find his wife next to him. और अपनी पत्नी को भी नहीं पा रहा था उसकी बाजू में। He was so accurate about his children. लेकिन हर एक बच्चे के बारे में वो उसने सही He was so accurate about his sons and he blessed them according to their natures. और अपने बच्चों के बारे में, लेकिन अपने पुत्रों के बारे में वो इतना सही था कि हर एक को उनके स्वभाव के अनुसार उसे आशीष। And today we are going to see from the life of Judah what God is going to speak to us. आज की रात हम यहूदा की जीवन से सीखेंगे, देखिए प्रभु क्या करते हैं उनके साथ। Father, we just want to thank you for this time. बेटा, इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते Anoint हैं। our mind. हमारे दिमाग को अभिषेक कर, Anoint our vocal cord. हमारे गले के स्वर को अभिषेक कर। Every word becomes spirit in our lives. हर एक शब्द हमारे जीवन में जी ले आए। And Lord, as we are learning these 12 tribes, और जैसे हम 12 गोत्रों को सीख रहे हैं, we believe that Lord, you are going to speak to our lives. हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जिंदगी से बातें We करेंगे। believe that there is something attached to when Jacob was prophesying over his sons. हम जानते कि जरूर कुछ बात जुड़ा हुआ है जब याकूब अपने पुत्रों पे भविष्यवाणी कर रहा And था। tonight, oh Lord, we believe that you are going to supernaturally, Holy Spirit intervention will be there. और हम इस बात पे विश्वास करते कि आज की रात पवित्र आत्मा तू दाखला देगा। Amen. You know, already I see the presence of God. मैं अब पहले से ही प्रभु की उपस्थिति को महसूस I कर रहा see हूँ। the cloud of God's glory all over. मैं सब जगह पे प्रभु की बादल की महिमा को देख रहा हूँ। After all, we are going to learn about Judah. और हम यहूदा के बारे में सीखने वाले हैं। Turn your Bible to Genesis chapter 49 verse 8 to 12. आइए अपने पवित्र शास्त्र को सब खोलेंगे, उत्पत्ति का 49 अध्याय में चलेंगे, 9वां वचन। And let's see what his father prophesying over his son Judah. अभी हम देखेंगे उसके पिता उसके अपने बेटे यहूदा के ऊपर कैसे भविष्यवाणी कर रहा है। Judah, you are he whom your brother shall praise. Wow. हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। Your hand shall be on the neck of your enemies. तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। Chapter 49 of Genesis verse 8, Jacob is speaking to his son, blessing his son Judah. उत्पत्ति का 49 अध्याय 8वां वचन से याकूब अपने पुत्र यहूदा के ऊपर आशीर्वाद दे रहा है। Your brother shall praise. तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। Your hand shall be on the neck of your enemies. तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। Your father's children shall bow down before you. तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। Can you remember Joseph saw the dream?
याद है यूसुफ ने वो स्वप्न देखा था, You know, he was standing and everybody will bow down before वो Jesus. खड़ा था और सब उसके सामने झुकेंगे। Here something is happening to Jacob's prophecy. देखो याकूब की भविष्यवाणी में कुछ हो रहा Now है, that's what I'm going very slow. इसलिए मैं धीमे से बोल रहा हूँ। Now 9. Judah, a lion whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion. And as a lion, who shall rouse him? Keep this in your mind. यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया था, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठा गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? ये अपने बाइबल में रेखांकित कीजिए, से याद रखें। When you read this verse 9, जब ये 9वां वचन तुम पढ़ते हो, Jacob is seeing the future coming Messiah. याकूब भविष्य को देख रहा, आने वाले मसीहा को। Can you read it carefully? क्या ध्यान से इसे पढ़ सकते He's हैं? seeing the future of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के भविष्य को देख रहा है। Verse 10. 10वां वचन, The scepter shall not depart from Judah. We are going to learn about scepter too. Nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. We will learn what is Shiloh. जब तक शिलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और न उसके वंश में व्यवस्था देने वाले अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। शिलो के बारे में सीखेंगे We are going to learn about the scepter. और राजदंड के बारे में भी सीखेंगे आज। Verse 11. 11वां वचन, Binding his donkey to the wine, and his donkey's colt to the choice wine. He washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes. Wow. वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहिरावा दाकों में के रस में धोया है। Verse 12. 12 वचन, His eyes are darker than wine, and his teeth whiter than milk. उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। Now, very big blessing pronounced by his father Jacob to Judah. देखो, अभी एक बहुत बड़ी आशीष उसके पिता याकूब ने यहूदा के ऊपर की। Now, let's see what prophet Moses is prophesying in Deuteronomy 33 verse 7. आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण 33 में भविष्यवक्ता नबी मूसा अभी कैसी भविष्यवाणी कर रहा है यहूदा के विषय में। Verse 7. 7वां वचन, And this is said of Judah, Hear, Lord, the voice of Judah, and bring him to his people. Let his hand be sufficient for him, and may you be a help against his enemies. और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। Okay. Now, if you read the background of Judah in Abhi- Genesis chapter 38, अगर तुम उत्पत्ति के 38 में तुम उसके पिछड़ों पृष्ठभूमि को जानोगे, how God took this wicked Judah प्रभु ने कैसे ये दुष्ट यहूदा को लिया and made him a great person in the kingdom of God. और प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ा महान व्यक्ति बनाया। Hallelujah. हालेलुया। If you read in Genesis chapter 38 verse 1, अगर तुम उत्पत्ति के 38:1 को पढ़ोगे, now beginning itself he has done wrong. शुरुआत में ही उसने गलत किया है। Hallelujah. He was supposed to marry the children of Israel. इज़राइल के बच्चे के साथ उसने विवाह करना He was चाहिए था। supposed to marry from the tribe of Israel. इज़राइल के गोत्र से किसी से उसने विवाह करना Now चाहिए read था। verse 1, 38 verse 1. 38:1 कहता है कि उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अब्दुल्ला फसी पुरुष के पास डेरा किया। Now remember, beginning itself, he is wrong. देखो, शुरुआती उसने गलती से He किया। was supposed to marry from the children of Israel, the tribe of Israel. इज़राइल के गोत्र से के लड़की से उसने विवाह करना चाहिए He था, took a Adumalite, लेकिन he the woman.
लेकिन उसने एक अदुलमावासी यानी एक अन्य जाति के स्त्री से विवाह किया, He married her. उसे विवाह किया। It was the first fall in his life according to the scripture. ये वचन के अनुसार पहला गिरने का कदम था उसका। Judah was such a wicked fellow. देखो यहूदा इतना दुष्ट था। Keep this in his mind. Keep in your mind. ये बात तुम्हारे ध्यान में रखो। So when you read the whole scripture, whole chapter of 38, you will understand how wicked he is. तो पूरा जो 38 अध्याय यदि तुम पढ़ोगे तुम समझ जाओगे वो कितना दुष्ट था। So when you read this chapter, तो जब ये वचन पढ़ते हो one thing that comes to our mind, तो हमारी सोच में एक बात आती है, how God can take such a wicked fellow and bring him and make him a tribe of Israel. प्रभु ऐसे एक दुष्ट व्यक्ति को कैसे लेकर इज़राइल का गोत्र बना सकते हैं And blessed him abundantly. और वो भी बहुतायत से आशीष दे सकते If you read in Genesis chapter 49, 8 to 12, अगर तुम उत्पत्ति का 49 8 से 12 पढ़ोगे, Jacob is giving a blessing to such a man. और ये ऐसे व्यक्ति को याकूब आशीष दे The रहा है, man who slept with his own daughter-in-law. और वो ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बहू के साथ में सोया, The man who did wickedness in the sight of the Lord. प्रभु के नजरों में कितनी दुष्टता उसने की। He married an unbeliever. वो अन्य जाति से विवाह किया, And also his sons were so wicked. उसके बेटे भी इतने दुष्ट And the थे, Bible says the Lord killed his sons. और बाइबल कहता है कि प्रभु ने उसके सारे बेटों को मार डाला। Now but here in 49th chapter of 8 to 12, after all these things, Jacob is prophesying over Judah. अभी 49 अध्याय में ये सारे 8 से 12 वचन में ये इतने सारे बुरे काम करने के बावजूद भी अभी यहाँ पे याकूब यहूदा पे आशीष It कोशिश is कर a रहा है। great blessing that is coming upon Judah. यहूदा के ऊपर एक बड़ी आशीष आ रही We है। are going to learn something beautiful today. रात को एक सुंदर चीज हम सीखेंगे। According to Deuteronomy 33:7, व्यवस्था विवरण 33:7 के अनुसार what Moses says, मूसा क्या कहता है? he says that bringing to his people, let his hand be sufficient for him, and may he help against his enemies. कहता है कि हे यहोवा तू यहूदा की सुन और उसके लोगों को के पास पहुंचा, वह अपने लिए आप अपने हाथ से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। That means Judah is going to fight the enemies. That's what the Bible says. यानी यहूदा उसके द्रोहियों के विरुद्ध लड़ाई करेगा। So when you go to the background of Judah's birth, अगर यहूदा की पृष्ठभूमि में तुम देखोगे उसका जन्म लेते समय, you know when Leah gave birth to Reuben, जब लिया ने रूबेन को जन्म लिया, she was unloved. और वो अप्रिय थी। When she gave birth to Simeon and Levite, जब वो शिमोन और लेवी को उसने जन्म she दिया, thought that now my husband will love me. वो सोची कि अब तो मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। Hallelujah. When she gave birth to the first child Reuben and Simeon and Levi, और जब उसने अपना पहला पुत्र रूबेन और फिर शिमोन और लेवी को जन्म दिया, my husband will love me. वो सोची मेरा पति अब मुझसे प्यार करेगा। But when Judah was born, लेकिन जब यहूदा का जन्म हुआ, she said, उसने कहा no matter my husband loves me or not, भले मेरा पति मुझसे प्यार करे या न करे, I will name the fourth child as Judah. Praise be to God. मैं मेरे चौथे बेटे का नाम यहूदा रखूंगी, यानी प्रभु की स्तुति हो। From this time onwards, आज के बाद I am going to please my God. मैं मेरे प्रभु को प्रसन्न करती रहूंगी। I am not going to please my husband. मेरे पति को प्रसन्न नहीं करूंगी। I am going to praise my living God. मेरे जीवित परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगी। The Hebrew word for Judah means praise. हिब्रानी शब्द यहूदा का अर्थ है स्तुति। Now she came to a conclusion, Leah. अभी लिया एक निर्णय पे आती है। It is good to praise God with all the things that I go through in life. तो प्रभु जो भी मैं मेरे जीवन में जिस भी चीज की जिससे मैं गुजर रही हूँ
वो बेहतर होता है, अच्छा है कि मैं उसकी स्तुति करती हूँ। Hallelujah. No matter what you go through in your life, अपने जीवन में भले तुम्हें किसी भी चीज no का matter सामना what problem that you are facing tonight, आज रात को जो भी समस्या से तुम्हें घेरा है, Leah went through problem, unloved. She was staying with an unloved husband. देखो लिया भी समस्या में गई, वो भी एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जो उसे बिल्कुल प्यार नहीं But कर रहा every था। time she conceived, she expected that my husband will love me. लेकिन हर बार जब वो गर्भवती हुई उसने सोचा कि अभी तो मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। Oh, when Simeon and Levi born, she expected so much of expectance was there. और जब शिमोन और लेवी का जन्म हुआ तो उसके अंदर बड़ी एक अपेक्षा थी, But nothing worked out to her life. लेकिन कुछ भी कार्य नहीं। Finally, in her life, she come to a conclusion when she gives the birth to the fourth child. She names the child as Judah, means praise be to God. और फिर वो ऐसे निर्णय पे आती जब उसका चौथा पुत्र जन्मती है तो उसे वो एक निर्णय लेती है कि मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। Now, when she decided to name the fourth child Judah, जब उसने देखो निर्णय लिया कि मैं इस बेटे का नाम यहूदा रखूंगी, meaning I will not please man, but I will please God. उसका मतलब है मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करूंगी लेकिन मैं Tonight, प्रभु को खुशी लाऊंगी। No matter whoever loves you or not loves you, you better praise God. आज यदि Make कोई a तुमसे decision. प्रेम करता है या नहीं करता है, लेकिन तुम एक निर्णय लो कि मैं प्रभु की स्तुति करती रहूंगी। Now, the first son, the second son, and the third son. अभी देखो पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। But think about the blessings falls to the fourth child Judah. अभी देखो आशीष वो चौथे बेटे को जाता है यहूदा। Judah was a spiritual giant as we see in his life. देखो हम देखते हैं कि एक आत्मिक योद्धा था वो, जैसे हम देखते हैं यहूदा। Hallelujah. Now let us learn from his life. अभी आइए उसके जीवन से कुछ Now let बातें us know who is Judah. Why a so wicked fellow he is, and God makes him a blessing to the nation of Israel. देखो यहूदा के बारे में आज कुछ सीखेंगे, जानेंगे कि क्यों वो इतना दुष्ट होने के बावजूद लेकिन प्रभु उसे इज़राइल देश के लिए एक आशीष का कारण बनाता है। Quickly, 7 points. जल्दी से 7 मुद्दे दूंगा। Turn your Bible quickly to Genesis 37th chapter. आइए जल्दी से उत्पत्ति के 37 अध्याय में चलेंगे। Okay, I want you to underline your Bible. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाइबल में जो कह रहे हैं उसे रेखांकित कीजिए आप लोग। Okay, 37 verse 26, point number 1. 27 अध्याय और 26 वचन। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? Judah spoke to his brothers यहूदा ने अपने भाइयों से कहा and told them not to kill his brother Joseph. ऐसे कहा कि हमारे भाई यूसुफ को खत्म मत कर, उसको But he मार मत said, डालो, let us sell him. लेकिन हमें उसे बेच देंगे। So Judah's attitude, number 1, was money-making attitude. पहला स्वभाव, पहला मुद्दा, यहूदा का जो स्वभाव था वो पैसे बनाने का स्वभाव। So let us not kill Joseph, नहीं यूसुफ को घात नहीं करेंगे, but let us sell him and make some money. उसे बेचकर थोड़ा पैसा कमाएंगे। Point number 2, Genesis chapter 37 दूसरा मुद्दा उत्पत्ति का 27 अध्याय and 31 to 35. 31 से लेके 35। Judah told lie to Jacob his father that Joseph was killed by wild animals. यहूदा ने अपने पिता याकूब से झूठ कहा That Joseph was killed by the wild animals. कि यूसुफ को जंगली जानवरों ने खा लिया। Number 2, he is a liar. दूसरा मुद्दा वो झूठा था। Number 1, पहला मुद्दा he was a money maker. वो उसको केवल पैसे बनाना चाहता था, He wanted to sell his brother and make the money. अपने भाई को बेचकर पैसे बनाना चाहता था। Number 2, he told lies to his own father. दूसरा मुद्दा वो झूठा था, अपने पिता से झूठ कहा। Number 3, तीसरा मुद्दा according to Genesis 38 verse 1, उत्पत्ति का 38:1 के अनुसार Judah married a heathen woman. यहूदा ने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया। He found a girl from Adumalite अदुमलवासी से विवाह किया and he married an unbeliever. और एक अन्य जाति से विश्वासी से शादी Now किया। let me give you a wisdom if you are a youngster.
अगर तुम एक जवान व्यक्ति है तो मैं कुछ बुद्धि की who is बात going to get married. जो शादी करने वाला है, Marry, a child of God should marry a child of God. एक परमेश्वर के संतान को परमेश्वर के बच्चे से ही शादी करनी है। This is what we learn from the life of Judah. यही बात हम यहूदा से सीखते Now हैं। who is Judah? यहूदा कौन था? Money maker. पैसा Who बनाने is वाला। Judah? यहूदा कौन था? He is a liar. झूठा। Who is Judah? यहूदा कौन है? He married an unbeliever. अन्य जाति से उसने शादी किया। Now Genesis 38:7-10. उत्पत्ति 38:7-10। He had 2 sons. उसके 2 बेटे थे। One is Ir and another one is Onani. एक का नाम था एर और दूसरा था ओनान। They were so evil in the sight of God. प्रभु की नजरों में इतने दुष्ट थे, They were so wicked in the sight of God. बहुत ही बुरे व्यक्ति थे वो And प्रभु की नजरों God में। killed them. Think about it. God killed Judah's 2 sons, Ir and Onan. और प्रभु ने उसके दोनों बेटे एर और ओनान दोनों को मार डाला। 5 Genesis 38:12. Read. बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात हो गया। Now he hung around ungodly men. He was supposed to be around godly people, but he is roaming around with ungodly people. देखो, पवित्र लोगों के साथ में उनके संगति में उसने बने हुए रहना चाहिए था, लेकिन अभी वो जो अन्य जाति के लोग हैं उनके साथ में अपना समय बिताने जा रहा He है। went up to his sheep shears at Timha, means he and his friend Hira the Adumalite. See? यानी वो भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास गया, यानी उसका जो अन्य जाति के दोस्त थे अदुल्लामवासी उनके पास जाके संगति रखा। Many believers today, आज बहुत सारे they विश्वासी hung around with the unbelievers. अन्य जाति के लोगों के साथ में अपना समय बताते हैं, That's where they fail in their life. तो वहीं पर अपने जीवन में वो असफल A हो child गए। of God should be with the godly people. एक परमेश्वर के संतान को जो है परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ Judah होना was चाहिए। supposed to be with the godly people, but he is roaming with the ungodly people. देखो, यहूदा ने भक्तिहीन लोगों के साथ में रहना चाहिए था, लेकिन वो अभक्तिहीन लोगों के साथ में समय बिता रहा है। Number 6, छठा मुद्दा, Genesis 38:18. उत्पत्ति का 38:18। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपनी हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। Now listen to this. He was so immoral. Judah was so immoral. देखो, यहूदा इतना अपवित्र था या गंदगी में था। He never knew he was going to sleep with his own daughter-in-law. उसको खुद को पता नहीं कि अपने ही बहू के साथ में सोने जा रहा है। And she conceived a child for him. और उसके द्वारा वो एक बच्चा भी पैदा हुआ। Daughter-in-law was so sharp to cheat him also. बहू भी कम नहीं थी, उसने भी अपने सास को धोखा दिया, ससुर को धोखा दिया। When you marry an ungodly, देखो, जब तुम कोई भी अपवित्र you व्यक्ति are से शादी करते opening a door for cheating. हो तो धोखा के लिए तुम दरवाजा खोल रहे हो। Number 7. 7वां मुद्दा, Are you enjoying? I'm just giving the points. क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो? Okay, if you're enjoying, give the thumbs up. थम्स अप दे दो अगर आप लोग आनंद उठा रहे संदेश का। मैं तो केवल अभी मुद्दे दे रहा हूँ। Genesis 38:26. अभी उत्पत्ति का 38:6। Okay, let's read. So Judah acknowledged them and said, she has been more righteous than I, because I did not give her to Selah my son, and he never knew her again. यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसको अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उसे फिर कभी प्रसंग न किया। When Tamar, when she came back to him, he refused to take her as a daughter-in-law. देखो, जब बहू उसके पास वापस आना चाहती थी, उसने उसे वापस लेना न चाहा। When Tamar came back,
जब तामार वापस आ गया, he refused to take her as a daughter-in-law. उसको उसने बहू के रूप में वापस अपनाने को नकारा। We are looking at a man यहाँ पर like this, एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं हम and we will say he will never be blessed. हम क्या कहते हैं, ये सब व्यक्ति कभी भी आशीषित नहीं होगा। If you look into this kind of nature, अगर ऐसे स्वभाव में तुम देखोगे, what kind of nature? कैसा स्वभाव था? He sold his brother for money. उसने अपने भाई को बेचा पैसे के कारण। He पैसे told के- lies to his father. दूसरी बात है, अपने पिता से झूठ He कहा। married an unbeliever. दूसरा अन्य जाति से विवाह किया। And his children were so wicked, God killed them, his children. God उसके killed his बच्चे children. भी इतने दुष्ट थे कि परमेश्वर ने स्वयं उसके बच्चों को He मारा। hung around with the ungodly friends. अपवित्र लोगों के साथ में वो संगति बनाया रहा। He was लगा। so immoral, he slept with his own वो daughter-in-law. इतना अनैतिक था कि अपने ही बहू के साथ में सोया। He never knew that he slept with his उसको daughter-in-law. पता भी नहीं था कि अपने बहू के साथ में वो सोया था। And number 7, he never accepted, took Tamar, his daughter-in-law, inside the house. सातवां मुद्दा, उसने अपनी बहू तामार को घर में आने से मना Now, किया। when you see this background जब of तुम इस- Judah, जब तुम इस यहूदा की इस पृष्ठभूमि को तुम देखते हो, what happens? तो क्या होता है? Can you speak a blessing? क्या तुम कोई आशीष घोषित कर सकते हो? God cannot use this wicked man like Judah. तो प्रभु इस बुरे व्यक्ति जैसे यहूदा जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर Such सकते। a wicked, इतना बुरा, such a crooked man, इतना टेढ़ा आदमी, such a evil, इतना दुष्ट, profit making, जो फायदा करने adulterous. और व्यभिचारी, He is a man named Judah. उसका नाम है यहूदा। And what is the meaning of his name? और उसका नाम का अर्थ क्या है? Praise. स्तुति, Praise. स्तुति। Such a wicked man. इतना बुरा आदमी। But something happened. Why did Jacob pronouncing a blessing upon Judah? Do subscribe to our channel and never miss an update from us.